The call is getting recorded now. Hello everybody, my name is Ashish Kumar. This is the session 2 of VC specialized training in core engineering branches. So I hope all of you guys have finished the module 1 of core engineering, submitted the task already. So before I start and talking about module 2, okay, I want to get the queries if you have anything related to module 1. Okay, so let's start with solar PV. Aditya Jain. Yes, sir, I have completed the module, but I do Yeah. not have any doubt as of now. क्या तुम्हारा प्रोजेक्ट था? व्हाट इज योर प्रोजेक्ट? So in solar PV, so basically, we in the module one we learned about different नहीं नहीं terms. नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग what was your project? So designing of solar PV. Okay, so tell me what is the unit used for solar radiation? So kilowatt per hour per meter square. Kilowatt hour per. Meter square. Okay, not per day or per thing. Yes, sir, per day. Yes, तभी बोलो ना, per day per year. Yes, sir. Kilowatt hour is a energy unit, not Yes, power sir. unit, right? Okay, and how much is the installed capacity of India right now in solar? Sir, I guess 500 gigawatt. Uh, ये installed capacity of India है solar का? Sir, let me Google search it so that I नहीं, do क्यों not Google remember. search? Uh, Hmm? Sir, I don't remember as of. No, I it is I a very did. simple thing. See, इंडिया का जो इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ पावर है ऑल ओवर द सारा पावर मिला के, दैट Mhm. इज 4 लाख मेगावाट के आसपास है, Okay, sir. लाइक 400 गीगावाट सारा पावर, सब कोल थर्मल सब मिला के, जिसमें कि सोलर इज अबाउट 38-39 थाउजेंड मेगावाट. ठीक है, 38-39 थाउजेंड मेगावाट. Okay. अब ये बढ़ रहा है धीरे धीरे. अब इंडिया का टारगेट है कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में, आई थिंक नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में 100 गीगावाट तक पहुंचा दे सोलर, लाइक 1 लाख मेगावाट. अभी 38-39 थाउजेंड है, 1 लाख मेगावाट तक पहुंचाना उसमें. Okay. हम्म, ठीक है. Yes, sir. ओके आदित्य, नो इश्यूज, गुड. ललित कुमार. प्रातिथि प्रधान. हेलो प्रातिथि. रिधि गोयल. सबसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा यार, मतलब यू कैन आंसर माय इफ आई एम सेइंग योर नेम, यू कैन से यस सर, हेलो और समथिंग. सौम्या शर्मा. Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग सौम्या. Uh, sir. डू यू हैव एनी डाउट? Yes, sir. Well, the doubt is not as big, but just to confirm my learning, I just want a little bit elaboration on solar resource assessment. ओके सो. Like, what is the solar resource assessment basically on site? ओके, सौम्या ने एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज सोलर रिसोर्स असेसमेंट, राइट? ओके, सपोज we are sitting in Delhi and we got a project of 20 megawatt in जैसलमेर. गवर्नमेंट ने बोला जैसलमेर में लगाना है आपको. So the radiation come from solar, the incident energy from the solar to earth different point to point. क्या डिफरेंस है उसमें? बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि यहाँ पे सोलर है यहाँ पे अर्थ है तो एकदम सीधा आया, तो डिफरेंस क्या होगा? कुछ डिफरेंस नहीं. नहीं, अर्थ इज टिल्टेड, राइट? अर्थ तो टिल्ट है, तो जो पोल एरिया, पोलर रीजन है, वहां पर सोलर रेडिएशन कम पड़ता है. तो अर्थ का जो जिस लोकेशन पे आपको प्लांट डालना है, वेर यू वांट टू सेट अप द प्लांट, दैट लोकेशन, दैट मैटर्स अ लॉट, राइट? फर्स्ट थिंग, लोकेशन एकदम पोलर रीजन में है तो रेडिएशन इज लेस. लोकेशन इक्वेटर के आसपास है, ट्रॉपिकल रीजन में, रेडिएशन इज गुड. लोकेशन नीचे वाले पोल के आसपास है, लोकेशन इज बैड, बैड रेडिएशन. तो एक पहला फैक्टर यह हो गया. ओके, इससे भी एक प्रिवेलेंट फैक्टर है,
इससे भी प्रिवेलेंट फैक्टर है to assess the solar radiation is where is that location. If it is in Rajasthan or if it is in Chhattisgarh, Bihar, Bengal, कहाँ है वो location? Because their local climate क्या करता है? The local climate hedge the sunlight. सबको पता है कि इंडिया हैव 4 hours of 4 months of monsoon, 5 months of bright white sunlight, and 3 months of hazy sunlight. अक्टूबर नवंबर दिसंबर थोड़ा हेजी होता है, 5 महीना बहुत अच्छा होता है, जनवरी टू मई, and 3-4 months there is a monsoon. But in some places the monsoon effect is less, and 8 months is bright sunlight. The radiation is good. For some places the monsoon effect is huge. Some places there is a monsoon effect and there is a fog effect also, like Bihar, Delhi, North India. There's so much of fog. There is no radiation at the time of fog, right? So people need to calculate that at a particular location how much is the radiation. So when I started my career in solar PV sector, it was very difficult to understand कैसे होगा. Then we go through a lot of books, Annamani books, this books, that books, what is the radiation calculated, what is the model they have used and all these things, right? But then what happened that after the research of 10-11 years, people done a lot of research in different zones. They find out, they prepared a map of the radiation. तो अब क्या करते हैं, अब सोलर रेडिएशन में क्या करते हैं, we'll go through the different data sources like Meteornom, Solar GIS, 3 tier, PVSys data also, NASA data also. सारे डेटा को इकट्ठा किया, एवरेज कर दिया. This is what the solar radiation right now is going on. But understanding of solar radiation is very important. ये समझ में आया? Yes, sir, I got it. Sir, one thing more. We use both the ways, like we could evaluate the data for solar resource management through weather report and through ground report as well. Means ground report means? So there are two ways. No, but There's yeah, I understand. The ground report is impossible, right? yes, sir, it's not too accurate as satellite नहीं, accurate है data. ही नहीं ना, मतलब देखो ग्राउंड पे किसी ने पैरोनोमीटर लगा के रखा हो 25 साल तक, वो तुम्हें डेटा दे दे, राइट? तो बड़ा अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड, नाइस. इतना अच्छा है, यहाँ पे पैरोनोमीटर है, 25 साल का डेटा मिल गया हमको. Why 25 years? Because the plant life is 25-30 years. But what if ग्राउंड में कोई डेटा ही नहीं है? ग्राउंड तो ऐसे जंगल के बीच में, रेगिस्तान के बीच में. But we know that there is solar radiation there, right? Data nahi hai, that doesn't mean there is no solar radiation. Then we do a lot of other modeling, other things, other calculations, and find out the solar radiation. Okay. So let me open the folder for you guys so that it will be easier for you to understand what to do in module 2. Okay, meanwhile, for other solar के अलावा भी anybody have any other doubt, you can ask. Waste to energy में electric vehicle module 1, anybody have any other doubt? ईशान, केशव, कृष्णा. Good evening, sir. As of now, there is no doubt, sir. Good. Okay. So let's discuss about module 2 one by one. Let's open the solar PV. You can see the screen, right? This is modules and tasks. Go to modules and tasks. Basic thing I already defined in module 1 simply. So in module 2, in this module, okay, now
In this module, you need to study about simulation of system sizing, yield analysis in solar PV plotter. That will be done by using the software PVSys and PVWatts. PVSys को यहाँ से डाउनलोड कर लो, PVWatts को यहाँ से. If you don't have a PC, you download PVWatts or go through PVWatts. Please go through links and learn how to use it fully. So PVSys download करो, and there are so many videos related to PVSys in this video link. Right? Go through and you need to learn how to use PVSys. It's a very simple simulation software. Simulation software mein, what is the it is not a coding software, it's a simulation software. Means you need to give inputs A, B, C, D, E, F. The software will simulate and give you the results. So it's simple to use, but it's difficult to explain. जैसे कि मैं एक investor हूँ, और if I am a technical head or if I am a bank, तुमको बताना पड़ेगा कि ऐसा PVSys में हुआ क्या, ऐसा जादू क्या हो गया कि उसने बता दिया कि कितना जनरेशन है, कितना ये. Right, so in module 3 you need to understand the reports which is generated by PVSys. In module 2 you need to download the PVSys. So when you download the PVSys, it's a beta version, like it's a trial version. No problem. Go through the trial version, and full version is not so difficult, not so different. It's almost same. Okay, you learn on trial version, and then when it is required, you can work on full version when you join a company or not. But learning is more important. And there are so many videos already there in our solar PV program on our online training portal. Watch those videos also that we have made, we recorded. So overall, we can finish this thing. Okay. Let's talk about the next module. Electric vehicle. Now again I am asking if anybody have any doubt related to electric vehicle. Module 1. No, sir. So you can see the module 2. In this module, interns need to perform a detailed technical commercial analysis of any electric vehicle of any reputed company. The technical feature along with the effectiveness of EV should be analyzed along with on-road commercial analysis and comparison between diesel variants. Okay, what you need to do, think about it that you have a friend, like I'm your friend, and I told you, sir, suppose Aditya, I have 20 lakh rupees, I want to buy a car. And I'm gonna buy this Mahindra or this something, some petrol car or diesel. And you are stopping him, don't buy that diesel car, buy electric car. I'll ask you why. Why should I buy electric car? क्या फायदा electric cars? Okay, so there are two ways of dealing this kind of things. One way is dealing like a नुक्कड़ पे चाय पीने के साथ मेरा इलेक्ट्रिक अच्छा है, बहुत बढ़िया मोदी जी, kind of stuff, kind of knowledge, kind of argument. Second way of dealing is a corporate, like industrial way of dealing. Because even if he accepts that हाँ electrical अच्छा है, इतना बोल रहा हो चिल्ला के तो, but which electric vehicle will buy? I will buy. What is the technical specification? Can I drive from Delhi to Jaipur directly from electric vehicle or not? It's 252 kilometers. ये तो technical issue आएगा उसको. It's not like he buy electric vehicle and Delhi after the moment he reach Manesar, the charge is over. अब कैसे? Then he will call me कि क्या दिला दिया तुमने? So you need to make a complete technical analysis of the electric vehicle. What is the torque used in that electric? What kind of electric motor they use? What kind of battery they are using? How much is the charging of the battery? How much is that? So whenever you face any big interview related to electric vehicle companies in future, and if he says that you have done a techno-commercial analysis, what do you know about electric vehicle? तो तुम्हें पास पूरा उसका specification दिमाग में एकदम रटा होना चाहिए. ये होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है.
So that analysis, technical and commercial analysis, you need to do. And for commercial analysis, you can take any state. Suppose you are in Hyderabad, take a state of Hyderabad. Right now, if somebody want to buy electric vehicle in Hyderabad, what are the commercial benefit they are getting? कोई टैक्स बेनिफिट है, कोई पॉल्यूशन बेनिफिट है, पीयूसी बेनिफिट है या नहीं है, देयर इज एनी टैक्स बेनिफिट, इंश्योरेंस बेनिफिट है या नहीं है, या कुछ बेनिफिट ही नहीं, राइट? दैट कमर्शियल एनालिसिस आल्सो यू नीड टू डू. हो जाएगा? एनीबॉडी हैव एनी डाउट? सर आई हैव अ डाउट. आस्क. सर सपोज कि अगर हम उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं तो सर टेक्निकल इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि आल्सो डिफाइन द टर्म इन द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन. तो सर व्हाट टर्म वी हैव टू डिफाइन? नहीं, जैसे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में चार्ट बना देता है, टॉर्क, यस सर, एनएम, यस इतना सर, इतना, राइट? तो यस अब सर, यस सर. इफ यू आर नॉट ए इंजीनियर, तो तुमने क्या, जैसे कि तुम व्हेन यू बाय ए मोबाइल फोन, राइट, तो Yes, उसमें sir. कुछ भी लिखता है, जैसे कि नॉर्मल आदमी क्या देखता है, क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, रैम, रोम, रैम 6 बोल रहा है, यहाँ पे 8 बोल रहा है, तो 8 वाला ज्यादा अच्छा होगा, लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, बगल के जी अंकल. सर. But Yes, as an sir. engineer, you will say, no, RAM means random access memory. Random access memory means this is the memory available for all the performance. So this and that. Right? तुम कैसे उसको डिफाइन कर Yes, देते sir. हो? तुम ये नहीं बोलते कि 4 Yes, sir. है तो 8 वाला ले लो, 8 है तो 12 वाला ले लो, अच्छा रहे. ऐसे नहीं बोलते ना. So that's why No, sir. when you do a technical specification, तो उसमें जो जो terminologies used है, like battery is Yes, sir. 1500 Ah. और ट्रक Okay, ड्राइवर sir. क्या बोलेगा कि 1500 एच था, हमने 1800 एच का ले लिया, बहुत अच्छा काम करा. नहीं, यू आर इंजीनियर, यू नीड टू एच मींस एम्पियर आवर्स. उतना Okay, एम्पियर sir. जनरेट करने के लिए कितना आवर्स तक ये करना पड़ेगा, तो दैट इज कितना वोल्ट है उसका, क्या किस तरह का बैटरी, लिथियम आयन है या ड्राई बैटरी है, क्या है इसका, क्या साइड इफेक्ट है, क्या नहीं है, तो ये पता होना चाहिए ना. Yes, sir. सर Okay, sir. फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में मतलब डिफरेंस क्या है, मतलब देखने दो मुझे. तो पहला तो टेक्निकल है ना, दूसरा कमर्शियल है. You don't know the difference between the technical and ओके commercial. ओके सर, यस सर, अब जैसे तुम्हारा दोस्त Got तुमसे it. पूछेगा, टेक्निकली तुमने एकदम उसको चढ़ा दिया, जैसे कि उसको मोबाइल खरीदना है, फॉरगेट अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसको मोबाइल खरीदना है, तुमने बहुत बोल दिया टेक्निकली ये बहुत अच्छा है, 12 GB रैम, दिस दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी, डेटा केबल, डाटा कार्ड, दिस दैट, एनवीडिया, सब कुछ सुना, उसने बोला बहुत बढ़िया, बहुत वेरी नाइस, बट कितने का है? तो बोला बस जस्ट दैट्स इट 42,000. बोले ना 42,000, हमारा बजट तो सिर्फ 15,000 है यार, तो कमर्शियली तो ये फेल हो गया ना हमारा, फॉर मी. यस सर, देख, तब तुम बोलोगे कि नहीं, पे 42,000 नाउ एंड इट विल बी बेटर देन 15,000. अब तू पूछेगा ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? अब मुझे कमर्शियल एनालिसिस, तुम बोलोगे कि अगर तुम ये मोबाइल लेते हो तो जियो का डेटा 10 इयर्स तक फ्री है तुमको, कुछ ऐसा नया तुमने कुछ बम फोड़ दिया, लाइक ऐसा कुछ नया बता दिया, जियो डेटा इज फ्री फॉर 10 इयर्स, तब वो 10 ईयर का डेटा कैलकुलेट करेगा, अरे डेटा फ्री है, कहीं भी हमको डेटा कोई जरूरत ही नहीं, फिर तो देन इट माइट बी पॉसिबल ही विल बाय 42,000, है ना, देयर इज अ चांस. यस सर, उसी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल में बोलेगा कि अरे मेरा तो टारगेट 12-15 लाख का है, एंड तुम व्हाट द कार यू आर सजेस्टिंग इज 27,000. तब वो बोलेगा, तब तुम बोलोगे पर किलोमीटर फ्यूल चार्ज ऑफ योर कार इज सपोज 8 रुपीज पर किलोमीटर फ्यूल चार्ज, ऐसा कुछ तुमने कैलकुलेट किया पेट्रोल का, विथ करेंट पेट्रोल प्राइसेस 100, अभी 100 है, वो बढ़ के 150 हो जाएगा, सपोज 120 होगा, ये होगा, तो बढ़ता जाएगा 8 से 9 हो जाएगा टन. यहाँ पे पर किलोमीटर पेट्रोल चार्जेस इज 1 रुपी, और जो कम हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस इज श्रिंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस ऐसे बढ़ नहीं रहा है कहीं भी लॉन्ग टर्म में, और उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, मतलब जैसे पेट्रोल बढ़ रहा है. यस सर, तब वो बोलेगा कि हाँ ये तो है, मतलब अगर हम एक इफ आई एम ड्राइविंग 50 kilometers per day, 1,500 kilometers per month, and 18,000 kilometers per year, and all these things, calculation this that, तो उसको लगा कि yes we are paying so much and it's hassle free.
यहाँ पेट्रोल जाके पेट्रोल भराना पड़ता है, यहाँ पे तो घर में ही चार्ज लगा दी, हो गया। तो शायद ही विल बाय। सो दैट इज कॉल्ड कमर्शियल एनालिसिस एंड देयर इज नो पीयूसी। यू कैन ड्राइव ऑन ऑड इवन डेज, बोथ द डेज यू कैन ड्राइव, राइट। तो ऑल दिस थिंग्स मैटर्स, राइट, दिस कमर्शियल एनालिसिस। एनी अदर डाउट? Yes, yes, sir. राजेश? Yes, sir. Sir, I just wanted to ask that the question 1 and question 2 has to be of the same electric car. या सेम इलेक्ट्रिक कार, Okay, sir. सेम अलग अलग का क्या जरूरत है? Thank you, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा गुड इवनिंग सर। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? सर विवेक कुमार। हाँ विवेक। सर आई हैव अ डाउट इन previous task sir. क्या डाउट है? Sir, we are talking about electric vehicle which provides more efficiency, but on hand we are generating electricity by using 63% of coal. So how is it efficient? तो पिछले टास्क मैंने कंप्लीट क्लियर किया था ना? यस सर किया था, लेकिन अभी डाउट है इसलिए पूछ रहा था सर। ठीक है, तो इसका फंडा ये है कि यस वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, बट हाउ इट इज environmentally safe because the electricity which is produced by coal, it is not in the middle of the city. उसका धुआं सिटी में घूम नहीं रहा, राइट? It is outside of the city always. Sorry, somebody switch. So it is not in the electricity produced by the coal power plant. It is not in the middle of the city. Siddharth Jain, why you have muted my call? सिद्धार्थ जैन, तुम बार बार मेरा ही कॉल को म्यूट क्यों कर दे रहे हो यार? हद है। Anyway, so the electricity generated by the power plant, it is not present in the middle of the city. It is outside. So whatever the emissions is coming, it's outside of the main city, and those emissions is not going in the city. It is going through the chimney in above atmosphere. So that emissions is not effectively worsening the situation in the city, right? सिटी का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो उस पावर प्लांट की वजह से खराब नहीं हो रहा, but all the petrol and diesel cars are like, you know, all the petrol and diesel cars are affecting the power quality of the air quality of the city, because वो सिटी के बीच में चला रहा हो तो ठीक है। That is the main difference. Any other question, Vivek? सर मेरा कॉर्पोरेट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम से थोड़ा डाउट था, कर सकते हो यहाँ? हाँ पूछो पूछो। सर वो प्री प्लेसमेंट का वो कर रहा था मैं, तो वहाँ पर आपने बोला कि डेमो सीवी या प्रोफाइलिंग मिलेगा, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। पीपीटीपी का जो वो है ना, उसमें जाओ, क्यों नहीं मिलेगा? दिखाता हूँ मैं तुम्हें अभी। ये कॉर्पोरेट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम मिल गया, दिख गया तुमको? इस पर क्लिक करो, ये आ गया पीपीटीपी, इस पर क्लिक किया, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, रिज्यूम सीवी फॉर्मेट्स हैं, ये आ गया रिज्यूम का फॉर्मेट, ठीक है। एप्टीट्यूड का ई बुक्स हैं, ये ई बुक्स आ गए एप्टीट्यूड का जो बहुत अच्छे हैं, सेशन का प्रेजेंटेशन भी है इसमें, सब तो है ना। सर ये पार्ट का लिंक आप शेयर कर सकते हैं सर? यार ये इन्फोशीट में शेयर्ड है अलग कोई लिंक थोड़ी है यार। तो इन्फोशीट में मॉड्यूल्स एंड टास्क पे जाओ तो ऐसे खुलेगा, मॉड्यूल एंड टास्क में जाओ, फिर अदर मैनेजमेंट रजिस्ट्रेशंस, ये रजिस्ट्रेशन कहाँ से आ गया? ये नहीं है। तो कॉर्पोरेट कोर इंजीनियरिंग, कॉर्पोरेट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम आ गया, कोर इंजीनियरिंग, कोर फाइनेंस, सबको मैंने ओपन करके रखा है,
that anybody want to check what is going on in other program, they can check, they can go through it. ऐसा कोई hidden नहीं ओके है. सर, ओके सर, थैंक बहुत यू लोगों सर। ने बोला कि सर हाइड कर दीजिए, वो उसको मत शो कीजिए उसको. We don't want to do that. Anyway, any other question? Okay, let's go to the third thing, waste to energy. Now, those who are doing waste to energy, do you have any doubt related to module 1? है किसी को डाउट मॉड्यूल 1 में? Okay, let's see what you need to do in waste to energy part 2, module 2. In this module, interns need to understand the municipal solid waste and its management, which include open dumping, sanitary landfill, MSMW units, how few municipalities like Indore are able to manage solid waste management detailed analysis. At a detailed process. So now, when you go through the basics of waste to energy, right? Basics जान गया waste to energy क्या होता है, कैसे होता है. Now, अब वेस्ट टू एनर्जी मैनेजमेंट जो यूनिट सब सेटअप करते हैं, उस यूनिट में होता क्या है, राइट? व्हाट पीपल डू इन दैट यूनिट, क्या होता है? वेस्ट आता है तो क्या करते हैं? सॉलिड वेस्ट आए क्या करेंगे उसको? तो उसका अलग अलग प्रोसेस है. द फर्स्ट व्हेन द सॉलिड वेस्ट आता है, वो जो जैसे ही डंप होता है फ्रॉम द ट्रक, इट इज कॉल्ड टिपिंग फ्लोर, राइट? टिपिंग फ्लोर पे उसको पहले मैग्नेटिक सेपरेशन किया जाता है. मैग्नेट का बहुत बड़ा मैग्नेट से चेक किया जाता है, कोई मेटल तो कुछ नहीं आ गया. मैग्नेटिक सेपरेशन के बाद उस पर पूरे के पूरे वेस्ट को उठा करके एक कन्वेयर बेल्ट पे डाला जाता है, ऐसे ऐसे घूमता है वो. उससे जो इनर्ट मटेरियल है, धूल उल, ये वो ईटा कंकड़ पत्थर नीचे गिर जाता है. फिर उसके बाद ऐसे, तो ये डिफरेंट प्रोसेस है. और उसका एंड प्रोसेस होता है सैनिटरी लैंडफिल, राइट? तो व्हाट इज दैट डन इन द सैनिटरी लैंडफिल? तो इस डिफरेंट प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है इस मॉड्यूल में, राइट? When you search on internet, you can find out a lot of things. Detailed process for MSW management, what is the step involved, what is the compost fertilizer, RDF, refuse derived fuel क्या होता है, sanitary landfill क्या होता है, ठीक है? इसको सर्च करना, ये सारे प्रोसेस को you need to understand. इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये पूरा प्रोसेस कर रखा है. दे आर द मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी. तो उसका भी वीडियोस देखो, क्या किया उसने, सब हिंदी इंग्लिश सब में समझाया, ठीक है? Very interesting and very nice module it is. Any doubt, any questions related to waste to energy? तुम लोग डाउट बहुत कम पूछते हो यार. Like if I am in your position, I would have asked hundreds of doubt to my mentor. Hello sir. Yes. Sir, Ayush this side. Sir, Yes, I am a student of the EV Techno-Commercial Analysis batch. Sir, I just want to ask, like, I have submitted my Smart Task 1, but I have not got any review, like, Okay, so was my task. they are checking your task and they will send you a review. They are sending review to everybody. So ऐसा नहीं है, you will also get it. Okay, sir. You'll get it. Thank you, sir. Okay guys, you guys are asking very less doubts. If I am in your position, if somebody is doing like this, कोई भी टेक्निकल टॉपिक में बहुत क्वेश्चन पूछता हूँ. When I was in BTech में 12 years ago, ठीक है? Anyway, let's talk to the last session, last thing of green building ratings and calculations. In module 2, in this module, an intern need to do a detailed analysis study of GRIHA, USGCB, Green Building, US Green Building Council, then complete process similarity and all. So first of all, you guys need to go to the GRIHA website. अब बहुत सारे लोग होते हैं, सर मुझे पता नहीं है ग्रीन बिल्डिंग. अरे यार, गूगल पे सर्च करो ना. अभी मैंने एक गर्ल्स को समझाया फाइनेंस में, जैसे ही कुछ नया वर्ड समझ में आया, सर्च ऑन गूगल, क्या है, कैसे हो रहा है वो, गूगल क्या कहता है. बिकॉज व्हेन यू ज्वाइन ए कंपनी इन फ्यूचर, ऐसा नहीं कि वो तुमको एक ग्रंथ ला के दे देगा. गूगल छोड़ो, इस ग्रंथ को फॉलो करो, यहां से इंफॉर्मेशन निकालो. दिल नो ग्रंथ एंड ऑल.
वो लोग भी तुमको यही बोले, काम करो गूगल, सर्च ऑन गूगल, फाइंड आउट, देखो सर्च करो थोड़ा, फाइंड आउट करो, डू एक्सटेंसिव सर्च, यही बार बार यही वर्ड बोलते हैं सारे बॉसेस। तो ग्रंथ नहीं लाके दे देगा। तो उस गूगल सर्च को कैसे अपने इंप्रूव करना है बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग, सर कैन यू प्लीज शेयर मी द वेबसाइट, आई डोंट नो व्हाट टू। तुमने सर्च किया गूगल पे, पूछा गूगल भैया से कि भाई मुझे बताओ गृह रेटिंग सिस्टम क्या है। अब जैसे गृह रेटिंग सिस्टम आ गया, उस पर क्लिक करो, ये वेबसाइट क्लिक, गृह रेटिंग मैंने टाइप किया, वेबसाइट खुल गया। ठीक है, इसमें पूरा लिखा हुआ है कि कैसे ये लोग ग्रीन बिल्डिंग बना, बहुत कुछ है यहाँ पे लर्न करने लायक, बहुत कुछ। लाइब्रेरी गृह मैनुअल्स क्या क्या है, चेकलिस्ट क्या होता है, इंसेंटिव क्या होता है, केस स्टडीज, तो केस स्टडी में जाओ, मतलब कैसे कोई बिल्डिंग बनाया है जो कि अब जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला, उसको 3 स्टार रेटिंग दिया गया गृह में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू इनकम टैक्स बिल्डिंग लखनऊ, उसको 3 स्टार मिला। यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रिसर्च पेडियाट्रिक केयर अहमदाबाद, 4 स्टार रेटिंग मिला। ठीक है, चेक करो क्या क्या था इसके, इसको इस पर क्लिक किया, मैंने चेक किया कि क्यों उसको 4 स्टार रेटिंग, ऐसा क्या कर दिया था इसने भाई 4 स्टार क्यों मिलेगा। तो सस्टेनेबल साइट प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट, एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन, ऑक्यूमेंट कंफर्ट, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल, वेस्ट मैनेजमेंट। तो एक वेबसाइट पे जाके बहुत सारा इंफॉर्मेशन निकल सकता है। तो इस हैबिट को डेवलप करो। अगर कुछ भी चीज गूगल में लिखा हुआ, जैसे कल एक लड़की ने यहाँ शायद आज ही पूछा कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मुझे समझ में नहीं आया, शी सर्च ऑन गूगल, उसको नहीं आया समझ, मुझसे पूछा, मैंने उसको एक्सप्लेन किया, तुमने यूज सर्च ऑन गूगल, तुमने पूरा पढ़ा, तुमको समझ में, अगर नहीं आया कोई चीज समझ, ये बार बार सर ये वर्ड यूज कर रहा है, ओ बाबा बाबा, ये कौन सा वर्ड है सर, ये तो नया वर्ड मैंने सुना ही नहीं कभी, इंग्लिश में है कि क्या, कौन से लैंग्वेज में, देन आई विल ऑल्सो सर्च ऑन इट, मैं अपना एक्सपीरियंस नॉलेज से दिखूंगा एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, फॉर सोलर पीवी, फॉर ग्रीन बिल्डिंग, फॉर वेस्ट टू एनर्जी, सर्च ऑन गूगल, उसका तुम टाइप को इंदौर म्युनिसिपैलिटी वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, यूट्यूब में कुछ ना कुछ ऐसा वीडियो मिल जाएगा जो तुमको बहुत तरह इंटरेस्टिंग होगा, नॉलेजेबल होगा। द वे यू सर्च एंड गैदर इंफॉर्मेशन, गैदर नॉलेज, it is makes you different than all other people. You are sitting here doing internship with VC, you are different than a lot of people who are still looking for internship, कुछ मिल ही नहीं रहा और कैंपस एम्बेसडर कर रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे, तुमको मिल गया, हाउ, वी नेवर गो टू योर होम, तुम्हें घर लिख करके, तो उन्होंने बोलेगा कि सर हमारे घर तो आप आए नहीं, तुमको कैसे मिलेगा, बिकॉज यू सर्च्ड, तुमने सर्च किया, तुमने इधर उधर देखते रहते, कहीं तो कुछ होगा, राइट। अब ऐसा हो ही नहीं सकता, वी आर नॉट फेसबुक या इतना बड़ा कंपनी कि सारे लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आई एम सलमान खान, एवरीबॉडी इज वाचिंग माय वीडियोस, नॉट लाइक दैट। एक लिमिटेड लोग ही देखते हैं, राइट, लिमिटेड लोग फॉलो करते हैं ऑन लिंक्डइन, बट इफ यू कीप ऑन सर्चिंग यू विल फाइंड आउट व्हाट यू आर लुकिंग एट। अभी तुमको इंटर्नशिप मिला है, यू गेट द नॉलेज एंड ऑल दिस थिंग्स, you will get the pre-placement training knowledge, make CV and all। अब तुम बैठ जाओगे कि अब तो इतना कर लिया, अब तो कंपनी आएगी, अपने एग्जीक्यूटिव भेजेगी हमारे घर में, रिंग द बेल, बोलेगी सर आपको जॉब लग गया, ऐसा होगा नहीं होगा। देन अगेन यू नीड टू सर्च, देन अगेन यू नीड टू फाइंड आउट कि अच्छा आई एम सिविल इंजीनियर, आई एम डूइंग इलेक्ट्रिक बिल्डिंग में, इंटरेस्टेड ग्रीन बिल्डिंग में, सो व्हाट आर द कंपनी हु कैन गिव मी जॉब, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, आर्किटेक्चर फर्म्स, लार्ज डेवलपमेंट कंपनीज, राइट। अब उसमें लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट कंपनी सर्च करते हैं, उनके में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाउ कैन आई मेक माय सीवी, एंड ऐसे ऐसे करके हिट एंड ट्रायल बम, गॉट द जॉब। सेम थिंग मैंने भी किया, सेम थिंग मिलियंस ऑफ पीपल आर डूइंग ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि तुमको कॉलेज में ही कोई कंपनी आके प्लेसमेंट दे दे, राइट, तुमको लगता है कि हाँ तो बहुत अच्छा है, तो इस NIT में पढ़ा था तो आई गॉट अ प्लेसमेंट, बट स्टिल पीपल नीड टू सर्च, जहां प्लेसमेंट मिलता है वहां पे काम अच्छा नहीं लगता, द कंपनी इज गुड दिस दैट, देन अगेन दे सर्च एंड गेट अ जॉब। तो सर्चिंग एटीट्यूड को ट्राई टू इम्प्रूव, दैट इज फॉर योर पर्सनल ग्रोथ,
टास्क का क्या है, यू कैन फिनिश द टास्क। बहुत सारे लोग तो इधर उधर से देख के कर ले रहे हैं, राइट? उससे ग्रोथ थोड़ी होगा। सर्च, भेज जाओ गूगल में। नाउ तुषार, तेजस्वना, योगेश, योगिता, एनी डाउट यू हैव? मोनिका? Sir, can I ask a doubt? Yes, of course. Sir, it's related to electric vehicles. In the modules, you had a reference for a YouTube video link, the playlist Mm-hmm. electric Hello? vehicles. Yes, sir. I lost Yes, you in sir. middle. Yeah, tell me. Sir, in the that modules and task sheet, in the references, you had a link to the playlist for, it was NPTEL course for fundamental of electric vehicles. Hmm. Yes, sir. I found it very, I mean, interesting and useful. Though it is so long that I think my internship would end before this. So I was just thinking that should I do, or where will it benefit me? No, see the Because point it's is, really very long course. yeah, see the point is, all those links are reference links. Yes, sir. ठीक है, reference links. तो अब suppose reference links means for those who want to gather more knowledge. ठीक, तो अब जैसे कि मैंने तुमको, तो you come to me, तुमने बोला कि सर बुक्स दीजिए, बुक्स। हम लोग जब कॉलेज में थे, when we are in college, तो बुक्स का ज्यादा था, ई बुक्स और वीडियोस था नहीं उस समय, 2005 6 7 क्या। सो जो प्रोफेसर इतना बुक्स सजेस्ट करते थे, उसमें कुछ बुक्स आर वेरी बिग, कुछ बुक्स जो पतले पतले होते थे। तो हम लोग क्या बोलते हैं, सर सारा बुक दीजिए, जो पतला वाला मैं पहले पढ़ लूंगा। तो जो भी कम छोटे छोटे वीडियोस उसको देख लो, बड़े बड़े वीडियोस को ट्राई व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर फ्री। तुमने देखा कि 45 मिनट्स का वीडियो है, लेट्स गिव ए शॉट। 20-25 मिनट देखा, तुमको अच्छा लगा, फिर अगली बार तुमने 10-15 मिनट और देख लिया, ऐसे ऐसे करके कंप्लीट कर लेना, ठीक है, लाइक दिस। बट इट इज नॉट मैंडेट। अभी तुमको इतना बुक दे दिया कि सब कुछ अभी एक ही दिन में सब पढ़ लो, सब कुछ पढ़ो तभी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट दोज आर फॉर रेफरेंस, गुड रेफरेंस। ओके Okay, sir. दोज आर गुड रेफरेंस। जिसको भी ऐसा है उसको अपना कर सकते हैं, देखें। So, यस मॉली? yeah, so I had a doubt regarding green buildings for future prospects. So I had Googled, like I have completed my civil engineering degree. So there aren't any colleges who are giving specializations of green building in India. Like abroad, I could find many. So if I'm interested in green buildings, having a civil degree. So how can I go about it? So any suggestions? So you have done BTech and you want to do MTech? So I've done BTech. I'm planning to do MTech. PG. Okay. So first of all, there is one university called Terry University where I passed out. Okay. So Okay, they sir. have a MTech course in renewable energy and some sustainable habitats and something. All So right. you can search that. Okay. Okay. So the good part is the learning and academics is very good in that university. So the bad part of the university is their placement cell is very weak nowadays. Okay, sir. एक वो बैड पार्ट उसका इस यूनिवर्सिटी का, वो मैं पहले बताता हूँ। हमारे टाइम पे इट वाज वेरी गुड प्लेसमेंट, हम लोग सबका अच्छा प्लेसमेंट हुआ। स्मॉल बैचेस थे, 20-22 स्टूडेंट्स के, एंड देयर सो मेनी एनर्जी कंपनीज, राइट? बट नाउअडेज द प्लेसमेंट इज नॉट वेरी गुड। सो वो था, तो ये एक ऑप्शन है। फिर भी देयर लर्निंग एंड द ट्रेनिंग इज वेरी गुड, बहुत कुछ सिखाते हैं वहाँ पे। But second option what you have, and that is my preferable option, is you finish this green building program here, right? Okay. If you want, like definitely we will give you a specialization certificate, or take that, right? And then Yep. go to Griha website. Okay. Griha website pe there are so many green building courses out there.
Yes, sir. They have test and everything also. हाँ, Yeah. अब उस गृहा वेबसाइट पे उस 2-3 कोर्स सर्टिफिकेट उठा लो. See, we have given you a certificate, right? But we are Yes. not Griha. Griha is government approved rating system of India, Yes. Yes. right? Yeah. ठीक है. तो अब तुमने 2-3 टेस्ट बेसिक वाला ले लो, pay the fee, go through the things and pass the test, and then make a profile that you are a green building consultant. तुमने green building में टेस्ट किया है, ये किया है, वो किया, सब आगे पीछे सब पता है green building क्या होता है. Try to find a job in any contractor or any developer. You will definitely get a job. It's not so difficult. Okay. और फिर वहाँ पे दिखाओ कि सर ग्रीन बिल्डिंग कीजिए, इसको ऐसे से कीजिए, ऐसे कीजिए. So then your career path will be much better rather than doing MTech. Okay. So, sir, like, with job prospects for the future, so it would be like profitable, right? Yeah, it's very profitable. The construction is very profitable, right? Construction Yes. is a profitable business. And there is one thing called cost benefit analysis of green building. तुमने सुना होगा, हमारे उसमें भी है. Yeah. Right. In the report, we have 2 topics. So अब CBA क्या होता है? क्या होता है cost benefit analysis? Sir, it is the cost effectiveness for the building. To calculate that, we have a certain method, so that despite having Griha methods and like we will implement that, but it should also be cost effective, so that our customer feedback would be good and नहीं. we would be appreciated. This is not cost benefit analysis. Suppose Molly, where are you from? So, Mumbai. You are from Mumbai, right? Yes. Suppose you are from outer area of Mumbai, like Navi Mumbai area, right? And there is no AC in your house. Okay. And I come to you and say, you don't have any AC. You should buy AC, 30,000 rupees. Okay. And it will make you cool. So you will ask, sir, what is the benefit of AC? How can I prove you any benefit of AC? Is there any payback for that 30,000? The benefit, like, I will. Okay, I would ask. Is there any payback for 30,000? No, right? No, there won't be. Yes. There is no payback. तुमने 30,000 डाल दिया, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जहाँ 200-300 रुपये आता है, तुम्हारा आएगा 1,000 now. Yeah. बिल भी ज्यादा है, पेबैक भी कुछ नहीं है, 30,000 का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, इतना बड़ा डब्बा लग गया, राइट? सो इन दैट केस वी विल नॉट डू बेनिफिट एनालिसिस. अगर ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट है जहां पे कुछ बेनिफिट तुम दिखा ही नहीं सकते, यू कैन नॉट डू एनी बेनिफिट. एक आदमी है जो अगर 25-30 लाख रुपए का कैमरी खरीदेगा, कैमरी इज अ वेरी नाइस कार, उसमें सारा सिस्टम है, ये वो सब कुछ है. उसको जाकर के बोलो कि मैं आपको एक कार दूंगा जो कि सारा उसके फीचर्स जो है कैमरी के बराबर है, बट हाँ मेरा कार का जो दाम है इट इज 80 lakhs. बोलेगा क्यों? क्योंकि उसमें एक मर्सिडीज का लोगो लगा हुआ, इट इज मर्सिडीज. तुम क्या बेनिफिट बताओगे उसको कि ही विल बाय मर्सिडीज? सो ब्रांड नेम. वो हमें क्या मतलब, हमें तो आज से पहले नाम भी नहीं सुना. So Mercedes itself is like, it has a brand name, so it will मैं be तुम्हें sold बोलूंगा, at. तुम अच्छा मैं ब्रांड नेम बोल दिया एसी का, कैरियर, सैमसंग, तुम खरीद लोगे एसी? It's ऐसे ही नहीं, like I'll also check like what So in that case, तो अगर जब कोई डायरेक्ट बेनिफिट हम बता नहीं सकते, जैसे कि तुमने बोला कि ये बिल्डिंग है सर, इसको ग्रीन बिल्डिंग कीजिए, इसमें ये डालिए, वो डालिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये वो, तुमने तामझाम बता दिया, उसका कॉस्ट निकल के अलग से 3 करोड़ रुपए. Yes. क्या बेनिफिट है? क्यों लगाया हमें 3 करोड़? हम तो फ्लैट बना करके बेच के निकलना है, हमको ये 3 करोड़ क्या मतलब?
सर अगर वो रिप्लेस कर रहा हो लाइक नॉर्मल लाइक कोई भी टेक्नोलॉजी उसको एन एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी सपोज रेन वाटर हार्वेस्टिंग से पानी बच रहा है और पानी का लाइक वेस्ट नहीं हो रहा और वो मीटर का बिल कम आ रहा है, सो इट विल बी गुड राइट? या तो इतना कैलकुलेशन करके 3 करोड़ आ जाएगा क्या? नहीं उतना नहीं आएगा कि हम तो म्युनिसिपैलिटी को 2-2 साल में एक बार पानी का पैसा देते हैं यार, कहाँ 3 करोड़ आएगा? ओके राइट? जब ऐसे किसी बॉटल नेक में फंस जाओ, इफ यू आर स्ट्रक इन दैट काइंड ऑफ बॉटल, अब हम कैसे बेचें उसको तो सब कुछ मिल रहा है उसी को। ठीक, उस केस में देयर इज अ टर्म कॉल्ड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अभी तुमने शेयर किया है स्क्रीन में। Yes, I can Cost see. benefit analysis, sometimes also called benefit cost analysis, is a systematic approach to estimating the strength and weakness of alternative used to determine the option which provide the best approach to the achieving the benefit while preserve savings. देखो जैसे कि मैंने फोटो डाला है इस तरह का, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन रिस्क, ये वो, राइट? Yes. तो ये सब कुछ डाल दिया गया। Cost benefit analysis is a systematic process that business use to analyze which decisions to make and which to forego. The cost analysis sums the potential rewards expect from the situation or action that then subtract the total cost associated with the taking that action. ठीक, ये सारे डेफिनेशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में तुम ये चेक करो कि उसका कितना बेनिफिट है, उसका बेनिफिट तो तुम चेक ही नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू। Yes, sir. Yeah. अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अब तुम एयर कंडीशन कैसे बेचोगी। अब तुमको पता चल गया कि मैं इसको बेनिफिट बोल के तो बेच नहीं सकती, वी कैन नॉट सेल दैट एयर कंडीशन पे। वो तो पंखा में काम चला रहा है जो 300 रुपए का आता है, 600 का आएगा, रात में तो वैसे ही ठंडा हो जाता है। तब आदमी एक नया टर्मिनोलॉजीज लेके आता है, देन दे विल टेल यू द कॉस्ट बेनिफिट्स। इट इज नॉट द बेनिफिट व्हाट यू आर लुकिंग एट कि ये सिर्फ कूल करता है, इट इज ऑल्सो द बेनिफिट दैट इट विल मेक ए कूलिंग एटमॉस्फेयर। इट इज नॉट ओनली कूल, इट ऑल्सो dehumidifies योर होम। डिह्यूमिडिफाइज का मतलब होता है कि आपका ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता है अपने घर के अंदर। सो कई बार पंखा चलता रहता है, टेम्परेचर इज ऑल्सो नॉट so high, but because of humidity it becomes so irritating. Sweaty, sir. Yeah. It's so irritating. So this AC will remove your irritation. First, this AC will give you nice humidity atmosphere to work on. तुम वर्क कर सकते हो, तुम्हारा बच्चा रोएगा नहीं, तुम्हें पसीना पसीना नहीं आएगा। घर में आते ही AC ऑन किया, all these things are nice. इरिटेशन कम होगा, तुम्हारा जो क्या बोलते हैं अनइजीनेस है, कंफर्ट जोन अनकंफर्टेबल जोन हो जाता है, वो कंफर्ट जोन में आएगा। इट विल बी इन द अंडर द कंफर्ट जोन, राइट? तो हाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी इफ यू आर नॉट एबल टू हैव ए कंफर्ट जोन इन योर हाउस? Okay. ठीक है। सेकंड थर्ड थिंग that this air condition will filter out all the क्या बोलते हैं, filter all the bacteria। HEPA filter होता है एयर कंडीशन में, एयर को फिल्टर करता रहता है। That's why you can tell them that when you go to hospital, तुमको वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना साफ सुथरा क्यों लगता है? क्योंकि सेंट्रलाइज एयर कंडीशन है। बैठने में why you feel so nice? तुमको सांस लेने में अच्छा क्यों फील होता है? Because it's air condition। Dust and all. तो अब इतना पैसा कमाने का क्या फायदा है इफ यू आर नॉट गिविंग यू दैट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट? अब वो कर देगा कि नहीं ऐसे? हाँ, कर ही देगा। हाँ, तो ऐसे 30,000 का एसी बिकता है, राइट? अब मैं तुमको ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट से बता रहा हूँ। अब ग्रीन बिल्डिंग में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम यू कैन सेल, पर ग्रीन बिल्डिंग में एक चीज है, एंड दैट इज व्हाई ग्रीन बिल्डिंग इज गेटिंग सेल। Suppose you and your suppose you get married or you want to buy a house। तुम्हारे पास 2 हाउस का ऑप्शन है, ये है अपार्टमेंट नंबर A सरस्वती अपार्टमेंट्स, ये गंगा अपार्टमेंट्स। तो गंगा वालों ने बोला कि यस मैम, हमारा जो है ना, वी आर फॉलोइंग ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स,
उससे क्या होता है, नेचुरल लाइटिंग है, एयर सर्कुलेशन, नेचुरल लाइटिंग, एयर सर्कुलेशन। उससे क्या होगा कि दिन में आपको लाइट नहीं जलाना है, दिन में यू विल गेट नेचुरल लाइट्स, यू विल गेट एयर सर्कुलेशन, देयर इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, राइट? Yes. The area that is used for greenery is more. On the terrace also we have a green garden, right? Yes. So for all these things, that the living in our building is more sustainability habitats. आपको ऑक्सीजन, क्योंकि बहुत जो छोटे छोटे बिल्डिंग होता है ना पास पास के, उसके नीचे में जो ऑक्सीजन लेवल होता है या फिर जो एयर लेवल होता है वो उतना सर्कुलेट नहीं हो पाता अच्छे से, लाइट अच्छा पहुंचता नहीं है, तो पीपल गेट डिप्रेस्ड. If you live in our building, there will be no depression. The oxygen level is good, the lights are good, right? And it will give you a natural cooling effect. तो आपको एयर कंडीशन भी कम जलाना पड़ेगा. It will be more natural cooling effect. अब तुम बताओ कौन सा टावर, कौन सा अपार्टमेंट लोगी, गंगा या वो पुराना वाला? सर जिसमें नेचुरल वेंटिलेशन है. तो ये वो बेनिफिट नहीं है जो तुम देख रहे हो कि अच्छा हमने 100 रुपए दिया, मुझे एक आलू टिक्की पैकेज देता है, अब 110 दिया उसमें कोल्ड ड्रिंक भी आ गया. दिस इज बेनिफिट एनालिसिस. हमने ए दिया तो उसको बी मिलेगा. यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट है कि तुम जो कॉस्ट पे कर रहे हो और उससे जो बेनिफिट है और कॉस्ट नहीं पे करके जो बेनिफिट है उसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है तुमको, एंड हाउ यू टेक द डिसीजन. कंपैरिजन है ना सर. दिस इज हाउ ग्रीन बिल्डिंग इज गेटिंग सोल्ड. अगर तुम इसका इस तरह से एक्सप्लेन कर पाए टू ऑल द डेवलपर्स एंड ऑल डेवलपर वांट टू डू ग्रीन बिल्डिंग. अभी बैंकॉक में जितना भी बिल्डिंग बन रहा है सब ग्रीन बिल्डिंग 4-4, 5-5 स्टार लेके आ रहा है. यस सर, बट इंडिया में सर इतना अभी आया नहीं है कॉन्सेप्ट. आया नहीं इसलिए तो करना है. यस सर, थोड़ा और जब आ जाएगा बहुत लोग वो हायर कर लेंगे, देन व्हाई शुड दे हायर यू. ऐसा कंपटीशन हाई हो जाएगा. एंड वन मोर थिंग, इंडिया में ग्रीन बिल्डिंग नहीं आया होगा बट बड़े बड़े बिल्डिंग्स तो बन ही रहे हैं. ग्रीन बिल्डिंग इज आल्सो कमिंग सो मच. Yes sir. So we had this as interdisciplinary subject. Yes. But anyway, focus on this. Focus on the developers. तो कहीं ना कहीं तुम्हें अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा. You will get a good option. Okay sir. Sure. So what did sir, can you repeat the college name which you have studied from? Terry SAS. Okay, fine sir. I'll just note that down. TRI Terry. Okay, Terry SAS. Fine. हाँ, इसमें बहुत कुछ होते रहता है छोटा मोटा ये वो. और इन्हीं लोगों ने ग्रीन हैबिटेट बनाया, ग्रीन हैब इन्होंने सब बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए. Okay. No sure. Any other questions? Any doubt? Anybody? Yes sir. Yes. Sir, actually I started my internship on 5th of June. And I have completed all the 3 tasks. And sir, only that the final report is left. So am I going to receive that corporate standard format or is it already uploaded somewhere? It's uploaded somewhere. Which internship you are doing? Sir, techno-commercial analysis of EV. Okay. So this is techno-commercial analysis folder, right? Yes sir. These are the things. So go to internship completion. Okay. Okay sir. Yes sir. This, and this is the link for the sample report. Okay. Okay. So use this format, not use the content of this report, and make Okay it. sir. Okay. Yeah sir. One more thing sir. Sir, actually I read on that VC website that if someone is preparing for PG in foreign countries, the LOR we are going to get, we can modify that. Sir, actually I'm preparing for masters in Germany in automotive. And sir, तो सर जो LOR होगा उसके लिए क्या प्रोसीजर है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए? एक तो हम लोग LOR देंगे तुम्हें जो सबको मिलता है. Yes sir. ठीक, वो ले लो. When you are applying to Germany, तब देखो कि तुमको क्या LOR में चेंजेस चाहिए, या किसी और यूनिवर्सिटी, जर्मनी तो अभी है ना, मतलब कोई और तुम लंदन में अप्लाई किए कहीं, तुमको चाहिए कि थोड़ा चेंजेस, तो मुझे फॉर्मेट भेजना, विल प्रिपेयर न्यू LOR. सर शेयर तो करो कर दिया भाई. उसमें बटन
क्या यार कुछ भी शेयर करते रहते हैं। यस एंड सर वो सर जैसे सर मैं 10 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करूंगा तो सर उन सबका जो कोर्स मॉड्यूल है सर सबका डिफरेंट है तो सबके हिसाब से बनेगा एक ही बन जाएगा या डिफरेंट होगा? नहीं नहीं, एक ही यार, मतलब 10 को अलग अलग करने में हम लोग बहुत टाइम लग जाता है। हाँ ये सब यही था। और हम लोग का ऐसा कुछ कमर्शियल नहीं है फॉर स्टूडेंट्स की। जैसे एक बंदा था, वो बोला कि सर मैं आपको 10,000 रुपया दूंगा, मुझे आप ये लिख के दो वो लिख के दो। आई से नो, मैंने एक बनाया है, उसी के हिसाब से विल डू। ठीक है, ओके सर। यस सर। ऐसा कुछ ऐसा बनाओ कि कॉमन मिनिमम सबके लिए हो जाए, राइट, इस तरह से। तो सर जैसे मैं नेक्स्ट ईयर अप्लाई करूंगा तो उस टाइम कैन आई कांटेक्ट यू एट दैट या टाइम? यू कैन कांटेक्ट। लास्ट ईयर जिन लोगों ने किया था उन लोगों ने अभी कांटेक्ट किया। ओके 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 सर। ओके थैंक यू सर। अरे यार कौन बंदा है यार बार बार। एनीवे, एनी अदर क्वेश्चंस, एनी अदर डाउट, एनीथिंग रिलेटेड टू योर करियर, योर लाइफ, मतलब लाइफ मतलब कॉर्पोरेट लाइफ, नॉट लाइफ लेक्चर्स। हरप्रीत सिंह, Yes, sir. any doubt, any questions you have? No, sir, not yet. Good. तेजस्वा भालावी, okay guys, finish your module 2, go through the सर एक task. डाउट Yes, था। क्या डाउट है बोलो। सर इस इंटर्नशिप के बाद सर मैंने एक प्रोडक्ट देखा था। एक कंपनी है जो एक प्रोडक्ट पर काम कर रही है और उनके इंटर्नशिप्स वैसे वो रखते नहीं, पर मैं चाहता था कि मैं खुद उन्हें कहूँ कि सर आई वांट टू वर्क विद यू एज एन इंटर्न। तो सर मैं उसके लिए आगे क्या कर सकता हूँ और इस इंटर्नशिप को कैसे वहाँ पे रेफरेंस की तरह यूज कर सकता हूँ? नहीं, इस इंटर्नशिप को रेफरेंस का ऐसा कुछ नहीं है। देखो, लोगों को पीपल यूज टू फॉलो कन्वेंशनल थिंग्स, राइट। तुम एक सीवी बनाओ, उसमें डालो, तुमने डालो कि हमने यहाँ पे एक इंटर्नशिप किया वीसी में। ओके सर। ठीक, ऐसा नहीं कि तुम वहां जाओ कि सर मैंने वीसी में इंटर्नशिप किया, दैट्स व्हाई यू गिव मी। ऐसा नहीं होता। वी विल फ्रीक आउट लाइक दिस। ठीक, तुम बताओ कि हमने इंटर्नशिप किया है, वेरी स्मॉल वेरी ह्यूज इंटरेस्ट, ठीक है, और एक ईमेल कर दो उनको, कोल्ड ईमेल कि आई वांट टू डू एनी, इफ यू हैव एनी इंटर्नशिप और समथिंग लाइक दैट, इस तरह से भेज दो। ओके सर। Okay guys, thank you very much. Take care of yourself. Finish the module 2. Okay, complete the module 2. Watch the videos, watch this thing. Take your time, give your time. सब कुछ एक दिन में finish नहीं करना है. People usually forget how fast you did, but they remember how well you did that. Anything. Okay.